starting with the great name of Allah. Today one of our ML student, Miss Sidra, is presenting her final defense. Her title is Enhancing Quality of Service for Dense Edge Computer Network through Software Defined Network. Her supervisor is Dr. Fatma Saud. Her external examiner is Dr. Ghufranullah, and internal examiner is me, Dr. Sayyid Irfanullah. With your kind permission and knowledge, we are recording this session. So I am requesting her to present her thesis. Assalamu alaikum. Can I start, sir? May I start, sir? Yes, start. Assalamu alaikum. My name is Sidra Ahmed and I am MS Computer Science student. I am MS Computer. My name is Sidra Ahmed and I am MS Computer Science student. I am also serving in Provincial Management Services and presently under the supervision of Sir Fahad Masood, I have completed my MS Computer Science and Research thesis on the topic Enhancing Quality of Services for Dense Edge Computing Networks through Software Defined Networking. According to the format provided by the university, this is the sequence of my presentation. Before going for the introduction, I will like to convey that my whole research work is surrounding around the IoT devices, edge computing devices, and software-defined network. Internet of Things are sir how much? इससे भी ज़्यादा Sir, my research work is basically surrounding around the IoT devices, Internet of Things, the edge computing and software-defined networking. Internet of Things are basically non-standard computing devices which are technologically advanced for communicating through in the networks, and they are basically sensors. They receive data from in the form of sensors and signals. They receive data, they compute them, they interpret them through softwares, and then make decisions accordingly in real-time applications. So Internet of Things are we can take examples in the form of हमारे पास बहुत सारे examples हैं smart cities, vehicle IoT of services, IoT of everything, healthcare devices जो हमारे vehicles में trackers लगे होते हैं, they are our IoT devices. These are our IoT devices and they are producing a lot of they are generating a huge amount of data. They are connecting trillions of mobiles of the other devices and continuously generating data. Due to this massive generation of data in the real-time applications, there is a huge burden on the cloud infrastructure. Cloud infrastructure is basically supporting these all real-time applications and this data generation in different aspects. In real-time applications, where they are providing Internet of services as a infrastructure as a service, database as a service, and programming as a platform as a service, but they are providing business agility. They are providing बहुत सारी business agility उससे हमें मिल रही है, हमें scalability मिल रही है, flexibility मिल रही है, लेकिन centralized होने की वजह से जी सर ओके सर या हमें समझ नहीं आ रही क्या आप बोल सर नाश्ता भी किया है मैं सर मैं अपनी हाई पिच पे बोल रही हूँ बस अच्छा इसलिए सर मेरी जो रिसर्च है वो ज़्यादातर सराउंड करी है IoT डिवाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स की गेट एज कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की सर ओके सर Sir, my presentation surrounds basically around the Internet of Things, edge computing and software-defined networking. Internet of Things are basically the non-standard computing devices which are generating
continuously generating a huge volume of data in our networks. They can be smart cities जो हैं, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, हमारे स्मार्ट आईफोन्स हैं, स्मार्ट हमारे फ़ोन्स होते हैं, हेल्थ केयर डिवाइसेस होते हैं. ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दे आर नॉट ओनली जनरेटिंग डेटा बट दे आर कंप्यूटिंग, दे आर यूजिंग द बैंडविड्थ of the cloud infrastructure is providing them services as infrastructure as a service, platform as a service and programming as a service, database as a service. लेकिन cloud की तमाम benefits के बावजूद, तमाम flexibility, scalability और सारी जो उसकी resources हैं उसके बावजूद there are complexes, challenges produce हो रहे हैं नेटवर्क में for networking, जिसकी वजह से edge computing जो है उसको हमने merge किया है to resolve the challenges of cloud computing which are producing due to the IoT devices. Edge computing is basically a computing model which has the ability to unify the resources at the geographically closer to the user. Geographically closer to the user, they are producing the resources and computing storage and network for application servers. This is basically brings computation and data storage closer to the location, which automatically fasters the processing of data. It gives the ability to real-time decision making and reduce the latency and optimizing bandwidth usage. एज कंप्यूटिंग की वजह से हमने जो है क्लाउड के जो चैलेंजेस हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चैलेंजेस आ रहे थे आईओटी डिवाइसेस को और उनके एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए, वो एज कंप्यूटिंग के थ्रू रिजॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि एज कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटेशन क्लोजर एंड पे ले आता है, जिसकी वजह से लेटेंसी इशूज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, या बैंडविड्थ इशू जो है जो कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है उसकी वजह से सॉल्व हो जाता है. IoT devices generate vast amount of data and need to be processed in real time to enable fast decision making. Edge computing, while this data can be processed locally, edge computing के थ्रू हम locally उस data को process कर लेते हैं and before sending it to the cloud for further analysis. Edge computing से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें सारा का सारा डेटा जो है वो क्लाउड पर प्रोसेस करने के लिए नहीं भेजना पड़ता है, बल्कि एज डिवाइसेस जो कि लोकली अवेलेबल होते हैं वो उसको उधर ही प्रोसेस कर लेते हैं लोकली, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है. बैंडविड्थ हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, और नेटवर्क कंजेशन भी नहीं होती है और फास्टर रिस्पॉन्स टाइम भी शुरू हो जाता है. लेकिन एज कंप्यूटिंग में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होने की वजह से एज जी सर व्हाट कैन आई सर justify your research problem, where your problem has come from. Sir, this is just an introduction. Your research issue, supporting different research papers you should have. Yes, sir, I have. There are a lot of 5 or 6 slides that I didn't see any reference. Okay, sir. Sir, I have not included references in the slides actually, but they are included in my paper. Secondly, I have placed all the literature review in this table. Few of papers are included in this table. And you will mix in multiple technologies, edge computing, IoT, software. Sir, because they are interrelated. So there are a lot of confusion. Sir, they are interrelated. I am just making links from top to bottom. I am just making links to come to my problem statement. I am making links to come to my problem statement. Actually, no, nothing else. Okay, you don't need to define IoT. You don't need to define software defined networks. You don't need to define computers. Okay, sir. You have to connect them with your problem. Okay, sir. And how you have formulated your research problem. Okay, sir. By studying what research papers, you have come to a conclusion that there is a gap and I have to Okay, sir. go for the one. Sir, then I have come to this slide. It's not visible, I think, but here it is visible. So, I have studied a lot of approximately 15 to 16. Yes, sir, but it's visible here. I don't know why it's not visible here. Okay, sir, I have. Can I make? मैं इसको चेंज कर दूँ? सर, मेरे पास ये विजिबल है. मेरे पास तो विजिबल है, उधर विजिबल है. मेरे पास विजिबल है. सर, फ्रॉम थ्रू आउट माई रिसर्च लिटरेचर मैंने सिर्फ 5 पेपर्स इसमें इंक्लूड किए हुए हैं. जो लेटेस्ट पेपर है वो 2023 का है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन एज कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग.
इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इनमें जो ऑथर्स का आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स थे वो ये थे कि इन लोगों ने SDN IoT एंड एज कंप्यूटिंग IoT इन दोनों आर्किटेक्चर्स के को कंबाइन करके इनके बीच में जो गैप एनालिसिस था वो किया था कि दोनों के बहुत सारे रिसर्चर्स ने SDN IoT और एज कंप्यूटिंग IoT दोनों को स्टडी किया हुआ है। उसमें से जो गैप्स थे वो भी निकाले हुए हैं, शॉर्ट कमिंग्स भी निकाली हुई हैं, लेकिन इन दोनों को कंबाइनली किसी ने स्टडी नहीं किया हुआ। तो इस रिसर्च पेपर में इन दोनों base paper research, all of them are, sir, because I have worked on latency and bandwidth. So the second, third, sir, their results are achieved. और जो फ्यूचर वर्क में है उसमें मेरा काम है, जो इनका फ्यूचर वर्क है जो कि डेफिशिएंसीज रहती हैं उसमें मेरा काम होता है। तो दे हैव इंटीग्रेटेड द टू आर्किटेक्चर्स SOD IoT, SDN IoT एंड EC IoT। इन दोनों आर्किटेक्चर्स को इन्होंने कंबाइन करके एक आर्किटेक्चर प्रपोज किया है जिसकी बेसिस पर इन लोगों ने लेटेंसी रिड्यूस की है और प्राइवेसी जो है वो इन्हेंस किया है। मेरा काम जो था इसमें रिलेट कर रहा था लेटेंसी से रिलेटेड, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, तो इसलिए उसमें मेरा जो काम रिलेट कर रहा है वो बैंडविड्थ इंक्रीज़ के ज़रिए लेटेंसी रिड्यूसिंग लेटेंसी के ज़रिए इसको रिलेट कर रहा है और साथ में पैकेट डिलीवरी रेशो को इंक्रीज़ करने के लिए उसको इस पेपर में मेरा काम यहाँ पे रिलेट का है। द सेकंड पेपर है रिसर्च ऑन डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल एज कंप्यूटिंग। इसमें रिसर्चर्स ने ज़्यादा फोकस किया है मोबाइल एज कंप्यूटिंग से रिलेटेड, जब ब्रॉडकास्टिंग होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है या ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, उन केसेस में जो लेटेंसी जो डिले आता है, ट्रांसमिशन डिले आता है, इस पेपर में उसको फोकस किया गया था। और एट द एंड उन्होंने जो आर्किटेक्चर प्रपोज किया था मोबाइल एज कंप्यूटिंग के लिए उसमें भी कहा गया था कि लेटेंसी की इम्प्रूवमेंट और हाई बैंडविड्थ की इम्प्रूवमेंट और लो लेटेंसी एंड हाई थ्रूपुट के लिए गुंजाइश मौजूद है। तो इस पेपर को भी मैंने अपने पेपर के साथ रिलेट किया। जी सर किया हुआ है, इनको स्टडी भी किया है, लेकिन इनके जो फ्यूचर वर्क्स थे उससे जो मेन वो था यही था। सर मेरे ये थे कि इन सब ने आर्किटेक्चर्स जो है वो प्रपोज किए थे, हम लोगों ने एल्गोरिदम यूज़ किया था उसमें, तो बस सिर्फ ये एडवांसमेंट थी। द थर्ड पेपर इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग IoT ऑफ सर्विसेज थ्रू सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ये थर्ड पेपर जो है वाजिद रफ़ीक का, इन्होंने इसमें मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स IoT इंफ्रास्ट्रक्चर उसको फोकस किया था और साथ में सिक्योरिटी। तो मैनेजमेंट ऑफ IoT इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसमें बैंडविड्थ और लेटेंसी और रेशो डिलीवरी ये सब कुछ उसमें PDR वगैरह जो है वो इसमें कवर होता था। यहाँ से भी मैंने अपने लिए किया था। द फोर्थ पेपर इज सिक्योर्ड फ्रेमवर्क फॉर SDN बेस्ड ऑन एज कंप्यूटिंग इन IoT इनेबल्ड हेल्थ केयर सिस्टम। फोर्थ पेपर जो था वो बेसिकली सर ये तो जी आप ये बता दें कि आपने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस बेस पर सॉल्व किया है? सर एल्गोरिथम क्या खास बात है कि आपने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिया? सर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इसलिए कि इन तमाम में जितनी भी चीज़ें हो रही थी, जितने भी पैरामीटर्स को ये लोग रिड्यूस या मैक्सिमाइज़ करने के लिए वर्क कर रहे थे, उसमें गुंजाइश अभी भी मौजूद थी और मैंने भी बैंडविड्थ को ही लिया है, एनर्जी कंजम्पशन को लिया है और लो लेटेंसी को लिया है। सर मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है सर माई प्रॉब्लम स्टार्ट कौन से सर इसमें वो किस नंबर ऑफ लाइन में 1 2 3 4 5 6 सर 6 से लाइन नंबर 6 में मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन मेथड दैट कंसिडर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव सच एज क्वालिटी ऑफ सर्विस, थ्रूपुट, एनर्जी efficiency, latency, cost is required to distribute this resources in SDN based education computing, edge computing. To solve this challenge, unique resource allocation algorithm and optimization approach. सर मैंने एल्गोरिदम यूज़ किया हुआ है मल्टी ऑब्जेक्शन रिवोल्यूशनरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है सर।
आपकी अपनी रिसर्च से या आपके वे से कंक्लूड किया हुआ? सर ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये तो सारे लिटरेचर रिव्यू और वो पढ़ने से कंक्लूड किया हुआ है, फिर उसके ऊपर जो आगे काम किया हुआ है वो खुद किया हुआ है। रिव्यू में आप शो कर सकती हैं कि कहाँ पर ये मेंशन नहीं है बात। इधर कहाँ पे है, ऑफिस में कहाँ पे है, इधर वो लिख रहे हैं स्टेटमेंट। सर मैं आपको समझाती हूँ। Maximizing throughput and minimizing latency may not be enough to accommodate the optimization method that considers multiple objectives such as quality of service, throughput, energy efficiency, latency, and cost is required to distribute resources. Sir, this is my problem statement. मेरे रिसर्च इसी में सर पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स। रिसर्च क्वेश्चन आगे हैं ना सर? ये 4 पैरामीटर्स है: एनर्जी कंजम्पशन, लेटेंसी, सर माय रिसर्च प्रॉब्लम ये है ना, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, थ्रूपुट, एनर्जी एफिशिएंसी, लेटेंसी और कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी। सर मैं इसको रिसोर्स एलोकेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ थ्रू मल्टी ऑब्जेक्टिव। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज सर, जिसमें बहुत QoS एंड सर आप सेकंड क्या बोल रहे हैं? QoS एंड throughput. Sir, throughput is the maximum amount of throughput is the maximum quality of services में सर we also consider jitters जो होते हैं उसको भी हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास डिलेज आ रहे होते हैं, ओवरऑल जो हमारी परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है जिसमें जिटर और डिलेज वगैरह सब, जिटर्स भी चेक करते हैं, ट्रांसमिशन डिलेज भी चेक करते हैं सर, लेटेंसी भी चेक करते हैं, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में थ्रूपुट इज द नंबर ऑफ डेटा दैट इज पास्ड। सर दे आर रिलेटेड बट दे आर रिलेटेड सर। जो थ्रूपुट की जो इम्प्रूवमेंट है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस को, अगर थ्रूपुट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ सर्विस भी इम्प्रूव होगी। डायरेक्ट है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So you have mentioned quality of service, throughput, energy, efficiency, latency, and cost. How many attributes you are focusing on? Sir, I have selected 4 of them. Okay, only one question. SDN is centralized, जी right? सर, Edge computing is distributed. distributed. IoT is distributed. Don't you think it is by default something जिसकी latency improve करना मुश्किल होगी? Because आपके पास एक कंट्रोलर है और नीचे से IoT based devices भी डेटा भेज रहे हैं, edge computing नोड्स भी भेज रहे हैं, ऊपर जब SDN में इतना लोड आएगा, उसकी latency कैसे आप सर लेटेंसी जो SDN की जो वो है ना लेयर, जो डिकपलिंग है उसकी जो लेयर्स को अलग करता है, कंट्रोल लेयर की जो उसकी सेपरेशन है वो उसको सेंट्रलाइज कर देता है, और वहाँ पे ये है कि लेटेंसी ऑटोमेटिकली ऐसे इम्प्रूव हो जाती है कि जब वो अगर वहाँ पे इन केस फॉर एग्जांपल अगर पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो रही है तो वो पॉलिसी जो है उसी लेवल पे इंप्लीमेंट होकर सारे जो उससे अटैच। सर मैंने तो एल्गोरिदम पे काम किया। सर एल्गोरिदम रिसोर्स एलोकेशन कर रहा है, रिसोर्स एलोकेशन कर रहा है जी, तो रिसोर्स जी डिस्ट्रीब्यूटेड में। सर जहाँ जहाँ क्रॉप हो रही है वही तो क्वालिटी है, वहाँ पे तो गैप्स को इम्प्रूव करना है। सर दीज आर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स टू एनहांस। सर आगे सर है मेरे पास सर थीसिस प्रेजेंटेशन में नहीं सर है, उसमें तो है थीसिस में है, इधर नहीं डालेंगे उसमें स्लाइड में से।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट में थी, इसके अलावा नहीं है सर। कॉस्ट नहीं सर, बस मेन फीचर बहुत ज़्यादा हो गया तो आप इधर रोलर 6 थर्ड कोर्स को आप कवर इधर के क्या सर। लेटेंसी थ्रूपुट है, लेटेंसी है, एनर्जी कंजम्पशन है और DDR है। जी सर, ये 4 है इधर की पैरामीटर कौन से सर। पैरामीटर्स सिमुलेशन पैरामीटर। जनरल बात कर रहे हैं जी सर। सर किस चीज़ के? एनर्जी एफिशिएंसी के पैरामीटर सर। थ्रूपुट है, आपकी डिलीवरी है। जी सर, किया ये थ्रूपुट है, थ्रूपुट को लेकर सर, थ्रूपुट को लेकर किया और मेथडोलॉजी है। सर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी है, वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगी। इस स्टेज पे सर डिसीजन मेकिंग होगी कि डेटा को जो है वो एज नोड की तरफ भेजना है या क्लाउड सर्वर की तरफ भेजना है। जी सर, डिपेंड करेगा सर। अगर डेटा प्रोसेसिंग जो है वो हाई कंप्यूटेशन मांग रही है, अगर उसके लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो क्लाउड पे चला जाएगा, और अगर उसकी कंप्यूटेशन जो वो एज नोड पे हो सकती है तो उसको एज की तरफ भेज देगा सर। एल्गोरिथम इसमें है मल्टी ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम। सर ये तो एक सर ये एज नोड जो है तो ये डेंस पे है ना, ये तो सिर्फ एक के लिए दिखाया गया है, ये तो एक डिवाइसेस के लिए। जी सर, नहीं सर, ये तो सिर्फ एक डायग्राम के हिसाब से, फ्लो चार्ट के हिसाब से बताया। मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ, डायग्राम जी सर। सर डेंस एज कंप्यूटिंग नेटवर्क से मतलब ये है कि सारे जो IoT डिवाइसेस हैं उसमें जो हमारे जो मोबाइल्स हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा सर वो नंबर ऑफ डिवाइसेस भी ज़्यादा है और ट्रैफिक उस पर बहुत ज़्यादा है, मतलब जी सर। डेंस एज का मतलब ये सर कि नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा है जी, और
ऑटोमेटिकली डेटा ट्रैफिक भी फिर ज़्यादा। ये सब बात आप जो बोल रहे हैं मैं नहीं समझ रहा हूँ। एक डिवाइस तो वो डिवाइस होगा ना जो आपके एज नेटवर्क को कनेक्ट करेगा सेम नेटवर्क के साथ। अरे आप इसमें अगर आप इसलिए देखें ना देखिए कि डेटा प्रोसेसिंग यस और नो, तो इसके पैरामीटर्स क्या होंगे कि ये प्रोसेस यस तो हो जाएगा, प्रोसेस नहीं होगा तो नो मतलब होगा, इसका ये मतलब है। नहीं सर, इसका ये मतलब होगा कि जो डेटा जो है वो एज नोड को जाना है वो एज नोड को चला जाएगा, और जो डेटा जो है जिसकी कंप्यूटेशन के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो क्लाउड नोड को चला जाएगा, वो क्लाउड की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे ये डिसीजन हो रहा है सर। अगर डेटा प्रोसेसिंग यस तो वो कौन सा पैरामीटर है कि जिस पर आपने ये दिया कि ये अगर सेटिस्फाई होगा विंडो पे जाएगा, उस पैरामीटर का नाम क्या है या वो वेरिएबल क्या है, वो कंडीशन क्या है, समझ में क्या है? सर इस कंडीशन में मैं आपको एल्गोरिथम में बता रहा हूँ। सर इससे मुझे पता लगे कि डेटा प्रोसेस हुआ और नहीं हुआ। जी सर। इस फ्लोचार्ट के डेटा प्रोसेसिंग नहीं हुआ तो नहीं हुआ होगा। सर तो सर डेटा साइज इसमें है ना, बिट्स में है, थ्रूपुट का है सर। ये जो हमने पैरामीटर्स यूज़ किए हैं प्रोटोकॉल में। 45 सर इसका थ्रूपुट है। वो कंडीशन आप अगर हम कहते हैं ना, अगर आप वो कंडीशन हमें बता दें कि जिस बेस पर आप कहती हो कि ये यस और ये नो है, तो हम ये समझ लेंगे कि आपकी रिसर्च हो गई। सर वो कंडीशन आप हमें बता दें कि इफ स्टेट यहाँ पर जो आएगा उस केस में चीजें जो ना लेते प्रीडिफाइंड कंडीशंस, कौन से कंडीशंस, जब प्रीडिफाइंड कंडीशंस सर डेटा प्रोसेस जी सर। जी सर। सर जो इनपुट डेटा है हमारे पास रिटर्न if A is equal to 10, तो अगर yes है तो वो सर मैं आपको बात no है तो B है। आपका कंडीशन क्या है? क्या आपने yes और no को लगाया है? कोई कौन सी बात होती है सर इसमें नहीं है सर। ये वाला जी। डेटा राउटिंग से जो आउटपुट निकलेगा, डेटा राउटिंग से जो दो आउटपुट निकलेगा, एक इनपुट में जाएगा, एक क्लाउड सर्वर में क्लाउड जाएगा। सर्वर रवि कोई कंडीशन नहीं है। इन दो को क्यों भेज रहा है? कौन सा इनपुट में जाएगा, कौन सा क्लाउड सर्वर में जाएगा और क्यों जाएगा? सर जिसको हाई कंप्यूटेशन की ज़रूरत होगी वो क्लाउड सर्वर, हाई कंप्यूटेशन की ज़रूरत होगी, जिसको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, जिसको हम किधर माना जाता है? सर मेंशन कोई नहीं कंडीशन आपने बताई नहीं। सर एल्गोरिदम में है। सर लेगा ना एल्गोरिदम की बेस पे लेगा ना डिसीजन, एल्गोरिदम की बेस पे डिसीजन लेगा ना। एक के साथ देखा ना, रिसोर्स एलोकेशन होगी सर इसमें। आपने
डेटा राउटिंग से एन को कई नोड में भेजा है, दूसरा क्लाउड सर्वर में भेजा जी सर। है। एक ऊपर से यस का एरो भी नीचे आ रहा है, और बीच में साथ दोनों यहाँ पर आप टच करते हैं। उधर भी दो जगह पे जा रहे हैं। यस के बाद भी दो जगह पे जा रहे हैं, क्लाउड सर्वर में एंड देन रेशियो। जो वायर कंडीशन इज देयर। अब राउटिंग का ये मतलब है ना, ये उसको एक पाथ डिफाइन कर देगा। तो अब ये पाथ डिफाइन नहीं करा, दोनों को भेजना, तो राउटिंग का क्या मतलब हो गया? सर मैंने जो एल्गोरिदम यूज़ किया है ना, वो रिसोर्स एलोकेशन की बेस पर। आपने यूज किया है। जी सर, वो SDN कंट्रोलर नहीं, SDN कंट्रोलर पे आके यूज़ तो रिजल्ट आपके पास कैसे यहाँ पे। है? सर SDN कंट्रोलर की बेस पे यूज़ किया। नहीं देखना, अब हम ये कह देना कि आपने तो सिर्फ कैसे कहानियाँ की, जी सर। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आपने एल्गोरिथम यूज किया है, तो कौन सा आपने उसके लिए यूज किया है, कौन यूज किया है सॉफ्टवेयर? सर बॉक्स यूज़ किया है एज कंप्यूटिंग के लिए, क्यूबर्टर है वो यूज़ किया। लेटेस्ट का नाम है कि विंडो लेना पड़ता है? सर विंडोज़ में, हाँ? विंडोज़ में सर SDN कंट्रोलर। कभी और क्या बॉक्स को जिंदगी में? सर मिनी नेट पे सारा कुछ किया हुआ है, उसके बाद मिनी नेट पे। जी सर बॉक्स कंट्रोलर सकते हैं SDN कंट्रोलर। बॉक्स कोई टूल नहीं है सर बॉक्स तो कंट्रोलर है ना, वो तो सही है सर। बॉक्स है, नॉक्स है, फ्लड लाइट है, बहुत इसको सारे। यूज करने के लिए आप जब मिनी नेट की वैल्यू मिनी नेट पे यूज़ किया है सर। सॉफ्टवेयर जी सर किया, थ्रूपुट का लेटेंसी के साथ किया है सर। जी सर। सर ये उसका मल्टी एवोल्यूशनरी ऑब्जेक्टिव एल्गोरिथम जो है उसकी बेसिस पे किया है सारा। जी सर, ये प्रपोज है सर, कंपेयर कर रहे हैं सर, ये कंपैरिजन किया हुआ है। सर ये जो हमने पॉपुलेशन ली हुई है उसको आपस में कंपेयर करके ये रिजल्ट्स निकाले हैं कि लेटेंसी इंक्रीज होती है थ्रूपुट के साथ, तो कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसको रिजल्ट। सर लेटेंसी का यूनिट जो जी सर, बिट पर मिनट सर, बिट पर सेकेंड। लेटेंसी तो सेकंड्स में, टाइम में सेकंड्स है सर, थ्रूपुट बिट पर सेकंड है। ये आपको लेटेंसी और थ्रूपुट को कंपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप कर रहे हो सर मुझे सर इनको कंपेयर करके तो क्या कभी आपने इस ग्राफ को अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस किया है? जी सर किया हुआ है सर। देखिए हमने 5 सॉल्यूशंस लिए हैं। ये इसकी बात है, ये आपने अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस किया है? सर किया हुआ है सर। सुपरवाइजर से आपको नहीं कहा कि थ्रूपुट और लेटेंसी आपको कंपेयर करनी है, किस चीज़ की करनी है? जी सर। सर ये एल्गोरिथम ये जो है जब आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ को आपस में, जब मुख्तलिफ पैरामीटर्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं और उसके जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, मतलब जो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं रिजल्ट्स में, उसको हम पैरामीटर फ्रेंड करते हैं, जो कि ऑप्टिमल ये जो एल्गोरिथम है ये उसके लिए सोल्यूशन होता है, पैरामीटर फ्रेंड सोल्यूशन। सर ये जो एक्स एक्सिस पे है वो थ्रूपुट है और लेटेंसी जो है वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे लेटेंसी है और थ्रूपुट जो है वो एक्स एक्सिस पे है। आपके
ये जो लार्ज 5.4 है सर, वो शो कर रहा है लेटेंसी को, और थ्रूपुट जो है ये जो 50 लिखा हुआ है ये लेटेंसी को शो कर रहा है। फर्स्ट वन सर, लेटेंसी की वैल्यू इस पर 5.5 आ रही है, और थ्रूपुट की जो है 50 है। 50 उसका डेटा है, और टाइम कंजम्पशन जो है, जो उसकी यूजेज है, वो लेटेंसी आ रही है तकरीबन 5.5 आ रही होगी, फिर पूरा वैल्यू नहीं है। 50 के साथ है हमारा 4.5। थोड़ा सा मैं सब बता दें जी सर, कि ये रोबोट और लेटेंसी एक ही एल्गोरिथम की है या डिफरेंट एल्गोरिथम। एक ही एल्गोरिथम है सर, एक है। तो अगर हम ये कहें कि रोबोट ज़्यादा तो लेटेंसी कम होगी उसकी। सर यही तो देखें सर, ये जैसे जैसे हमने वैल्यू, हम ये कहते हैं कि रोबोट अगर ज़्यादा होगा तो लेटेंसी कम होगी। सर ये एल्गोरिथम इसीलिए तो यूज हुआ है कि थ्रूपुट जब ज़्यादा होता है तो साथ साथ लेटेंसी भी कम हो। जहाँ पे ज़्यादा, अगर ज़्यादा होगा जी, तो लेटेंसी कम कम होनी चाहिए। ये तो अंडरस्टूड है। जी ये आपको पता है ना जी जी सर। कि लेटेंसी अगर कम होगी तो रोबोट ऑटोमेटिकली ज़्यादा। सर तो हम तो इन ग्राफ्स में सिर्फ इम्प्रूवमेंट चेक करते हैं ना, एग्जैक्ट तो नहीं है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट चेक कर रहे हैं। आपने किसी दूसरे एल्गोरिथम के साथ कंपेयर नहीं किया? नहीं सर, एल्गोरिथम के साथ तो नहीं। कैसे पता चला कि आपका काम ठीक है? ये तो हम अपने काम की कंपेयर कर रहे हैं, और आपने आपसे में लिखा है कि कितने परसेंटेज मेरा भूल हो गया, कैसे पता चला? अब ये ग्राफ में देखिए ये दिखा रहा है अगर कि रोबोट ज़्यादा है तो फिर डिलीवरी रेट आपके पास कम है, उल्टा नहीं है। अगर रोबोट आपका ज़्यादा है तो पेमेंट ज़्यादा डिलीवर हो रहे हैं ना। अगर आप देखें कि रोबोट ज़्यादा है और सर तो इसका वो कम आया ना। रोबोट बढ़ेगा ना तो ये आपके पेमेंट ज़्यादा डिलीवर हो रहे हैं। तो दोनों जो है एक उसमें जा रहा है। इधर हम देखते हैं कि थ्रूपुट वाले रेशो कम हो रही है। सर तो ये इस पे डिस्क्राइब किया हुआ है। आप देखें आप देखें तो 0.92 है। इधर अगर थ्रूपुट कम है 45 तो डिलीवरी रेट 98% कैसे होती है? थ्रूपुट कम हो रहा है तो कैसे मतलब आपके पास डिलीवरी रेट ज़्यादा हो सकती है। ये ज़्यादा थ्रूपुट में पैकेट डिलीवरी रेशो कम क्यों है? सर तो यहाँ पे ये वेरिएशन बता रहे हैं ना सर, कहीं पे चीज़ कम ज़्यादा हो रही है ना, मतलब ये वेरिएशन बता रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि मैं कह परफेक्ट। रहा हूँ कि एक गाड़ी है और वो 50 पैकेट्स में है वो ट्रांसफर करता है। जी सर। जी ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसके पर सेकंड जो है टाइम कितने पैकेट ट्रांसफर वो भी ज़्यादा होगी। जी ऐसी बात है वो जी डिलीवरी रेशो ज़्यादा होगी। जी सर। अब यहाँ पर आते हैं कि आपके 50 ट्रांसफर हो रहे हैं जी सर। लेकिन डिलीवरी रेशो इसकी खराब है। जी डिलीवरी रेशो अगर सर। आपके लिए 45 है डिलीवरी रेशो टॉप लेवल को टच करने के लिए
सर तो कहीं जो वेरिएशंस आ रही हैं ये वेरिएशंस को डिस्क्राइब है सर। ये पेरोटो का यही तो मतलब है कि जो जी सर मुझे समझ आ रही है कि 45 पे जो है वो 0.9 बढ़ने के साथ दूसरी चीज बढ़ रही है। जी सर। आपकी एक चीज के बढ़ने के साथ दूसरी चीज इंतहाई खराब हो रही है। जी सर तो ये गैप आ गया ना सर। इसके कम होने से दूसरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी सर जबकि दोनों आपस में नहीं, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है सर। एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, तो उल्टा हो रहा है। सर तो ये इस रिसर्च का ये गैप आ गया ना सर, ये लैक हो गया, मेरी रिसर्च का ये लैक हो गया। ये आपने जो स्केलिंग की है जी सर। 0.92 और 0.98 जी सर। स्केलिंग को अगर बढ़ा दें तो फिर क्या होगा? 0.92 और 0.9 पॉइंट ज़्यादा बता स्केल लिखा हुआ है तो आपने जी जी सर। 0.98 ये 0.92 क्या होगा? स्केलिंग बहुत कम तो नहीं है। जी स्केलिंग बहुत कम तो नहीं है। 92 से 98 का इसमें कितना डिफरेंस है 0.92 से 0.98 में? 0.92 से 98 में सर एक ही पॉइंट एक ही उसके अंडर आ रहे हैं सर 92 93 -0.92 को क्या तो है? 0.1 का डिफरेंस आ रहा है ना 0.1 0.06 जी बिल्कुल 0.5 स्केलिंग को बढ़ा दें जी सर। लेट्स सपोज हम 0.5 से 0.9 तक रख दें फिर ग्राफ में क्या इफेक्ट आएगा? सर अगर हम इसको बढ़ा देंगे पैकेट डिलीवरी रेशो को तो थ्रूपुट अगर सेम रहेगा, थ्रूपुट सेम रहेगा और वो पैकेट डिलीवरी रेशो जो होगी वो इंक्रीज होगी। आपका मकसद ये है? देखिए, बात ये है ना कि जितना कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा उसके साथ करेक्ट वो बढ़े, चाहे कम है या ज्यादा बढ़ तो रहा है ना। उसके बाद इनको आप पीछे छोटे कर दें पीछे सर तो अभी पेपर है अच्छा टेबल आगे उसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस कर दें। सोल्यूशन है। सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 इसमें आपने टोटल अपडेट्स को कौन सा किया होगा? सॉल्यूशन 1 के लिए अलग हमारी रीडिंग है, सॉल्यूशन 2 के लिए अलग है, 3 4 5 के लिए अलग है। सॉल्यूशन बात है, तो अब हमने इसके ऊपर कितना ग्राफिक बनाना है, कोई डिटेल नहीं है इसका। अभी सॉल्यूशन 1 जो है कौन सा सॉल्यूशन है? आपने इससे ये लगा कि आपने 4 सॉल्यूशन किए, तो व्हाट इज सॉल्यूशन नंबर 1? सॉल्यूशन नंबर 2 पे कौन सा है? उसकी रीडिंग क्या है? ये कह सकते हैं हाइड्रेशन ये सब तो है नहीं ना, वो क्या है मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सर नंबर ऑफ हाइड्रेशन उनके ज़हन में क्या है? ये एक सेक्शन में तुम्हारी रीडिंग होनी चाहिए, ये दूसरे की रीडिंग होनी चाहिए, इस बात ये डिफरेंस को पैरामीटर चेंज क्यों होंगे ना? हाँ जी सर। तभी रिजल्ट तुम्हारा ट्यूशन होगा। नहीं, इसको सॉल्यूशन 1 के पैरामीटर्स का पता ही नहीं है। सर पैरामीटर्स को सॉल्यूशन 1 में नंबर कौन से पैरामीटर्स को आपने छेड़ा है? सर यही पैरामीटर्स हैं हमारे थ्रूपुट ऐसा लग रहा है आपको प्रेजेंटेशन डिफरेंस देने में कोई जल्दी नहीं। नहीं सर तो थ्रूपुट और लेटेंसी सर यही पैरामीटर्स हैं सर यही पैरामीटर्स हैं नहीं सर बस पूछे क्वेश्चन से फिनिश करें बस थक गई हूँ मैं तो इससे। इससे मेरा स्टूडेंट आया था वो यार, तो मीटिंग में कहता कि सर मेरे पेट में दर्द है। तो अब हमने कहा कि अब कई बीमार हुए हो ना, पूरे 4 साल तो आप बीमार नहीं हुए। पूरा अच्छा करके आपने इसे टाइप किया ये पूरी नजरिए इसमें डिटेल आप सॉल्यूशन वाइज
पता है मुझे आप लोग को आंसर करने की समझ नहीं आ रही है, मैं कैसे बताऊँ? हम जज करते हैं सर यही पैरामीटर्स हैं, मैं तो कह रही हूँ कि ये पैरामीटर्स आप लोग कहते हैं ये नहीं है। पूरे सोल्यूशन नंबर 1 क्या है तो आप बता देते कि दिस इज सोल्यूशन इज अ राउंड राउंड है सर, वो पीछे मैंने पूरा स्टडी किया। पिरामिड्स आपने जो जोड़ चेंजेस किए आप दी वो क्या चीज सर सारी की हैं, कौन सी? सर मुझे तो जो समझ आ रही थी मैंने वैसे सारा किया है। सर एब्स्ट्रैक्ट में इशू है और कौन से में इशू? एब्स्ट्रैक्ट के अलावा और किस चीज़ में इशू है? बाकी तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट भी किया था, सारा किया था। नहीं सर दोबारा मत कहें प्लीज, जो पूछना है वो पूछ लीजिए। इसलिए हमारा वक्त के पास है आपके सर बस देख लीजिए। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं सोल्यूशन 1 2 3 ये आप बता रहे सोल्यूशन 1 और 2 में फर्क क्या है, चलो हम आपको पास करें। सर ये राउंड है ना, ये सोल्यूशन जो है राउंड है जिस पे के पैरामीटर्स। जी सर। सर उसमें सेक्रेटेरिएट सेक्रेटरी। तो शायद हम हमारे साथ आज इस तरह आप शेयर करें तो पास करें। सर पूरी दे दूंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन वाली बात सॉरी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब ये नहीं है कि हम आप सर मुझे पता है। मकसद बताने का ये है कि देखिए यहाँ पर आपने अपने ग्राफ को डिफाइन किया जी सर। तो सर फादी आप जरा देखिए कंफर्म करिए कि मतलब तब हम इसका किसी रिजल्ट हम फाइनलाइज करेंगे कि आपने लिखी। ठीक है सर। अदरवाइज मतलब हम इसको देखेंगे ही इज डिससैटिस्फाइड। जी सर। तो हमने जो मेन कंप्यूटर थे रिसर्च को वाले सर जी सर। नहीं असल में देखें वो चीजें को डिस्कस करते हैं। हाँ मसला है कि मैं आपको बता दूं ना कि समटाइम वी डन अ वर्ड मिस्टेक। जी सर। If one mistake is done okay, two are done okay, but a bunch of mistakes makes a blunder. ठीक है सर। तो मतलब ये है कि अगर हम इस पर देखिए अवार्ड आपको करते हैं ना तो आप खुद देख लीजिए जी सर। where your work stands. जी सर। ठीक है
बिल्कुल ये है कि आपने दोबारा सर के पास जमा करना होगा। ठीक है इन सर। रिजल्ट्स को आप सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है सर। वी आर गिविंग यू 1 मंथ टाइम। ठीक है सर। ठीक है, तो 1 मंथ में आपने सर को बताना होगा। सर के हमें कहेंगे कि हर वर्क इस ओके में सर के साथ शेयर करूंगा ठीक है सर। कि अगर ही इज सेटिस्फाइड देन वी विल टेक दिस। ठीक है सर। मैं सर एक महीने से पहले अगर आपका थीसिस आ गया हमारे पास विद सेम फॉर्मेट, सो इट विल गो स्ट्रेट अवे टू द रिविजन। ठीक है सर, बिल्कुल सही। थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच। बस नेक्स्ट टाइम अगर आप डिफेंस दे, डोंट कंसीडर इट अ जोक। जी सर। Because the honorable professor, he came from University of Boston University, Katawa. एग्जैक्टली He सर। is a full-fledged professor who was there upon the TTS. बिल्कुल सर। And we requested him to come from there to defend you, whether your thesis is valuable or not. एग्जैक्टली सर। The university is spending a lot of money and the honor also. नो डाउट So सर। ये आप अपने ज़हन में रखें जी सर। कि you are you made it. जी You are MS level degree. So at least it is upon the second जी one. सर। ठीक है. Okay. थैंक यू सो मच। Sir, आप बताइए. मैं बात करता हूँ. ठीक है, आप जा सकती हैं। ठीक है।